Let us move on to question 12. Pointing to Snehal, Jeevan said her mother's only daughter. So see, Snehal is an ambiguous term, right? हमारे देश में बहुत सारे लड़कों के नाम भी स्नेहल होते हैं, बहुत सारे लड़कियों के नाम भी स्नेहल है ना? बट उन्होंने बोला है कि हर मदर, जीवन ने बोला स्नेहल के बारे में बाय सेइंग हर मदर, तो स्नेहल को हर से रिप्रेजेंट किया है, तो स्नेहल का जेंडर दे दिया है फीमेल, राइट? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू नोटिस. द क्वेश्चन इज हर मदर्स ओनली डॉटर इज माय डॉटर. हाउ इज जीवन रिलेटेड टू स्नेहल? एंड देयर आर 5 ऑप्शंस: ब्रदर, सन, ब्रदर इन लॉ, फादर, अंकल. Alright, so I hope you have paused the video for 1.5 minutes and you have tried to solve it. Now this is a simple question. It is from chain relations, and by now you have understood how to solve those kind of questions. Okay, so let's start understanding. Pointing to Snehal, Jeevan said her mother's only daughter is my daughter. Focus on one thing. Snehal is a name which can be attributed to both the genders, that is male and female. Correct? So Snehal could be a male person, Snehal could be a female person. But in the question, Jeevan describes Snehal as her mother. See, please understand. Look at this pronoun. Her mother. So that means it is given to us that Snehal is female. So Jeevan said her mother's only daughter is my daughter. Her mother's only daughter is my daughter. Okay. So let's say this is Jeevan. Right. Let's say this is Jeevan's daughter. ओके, सो माई डॉटर मतलब हमने ये जीवन की डॉटर को डिनोट किया हुआ है. ओके, नाउ स्नेहल्स मदर्स ओनली डॉटर. स्नेहल्स मदर्स ओनली डॉटर मतलब कौन? लुक एट हियर. फॉर एग्जांपल दिस इज स्नेहल, दिस इज हर मदर. सो स्नेहल्स मदर्स ओनली डॉटर इज स्नेहल ओनली. So her mother's only daughter is Snehal, and Snehal is my daughter. That's it. So basically जीवन की daughter ही स्नेहल है. Right? So क्या question क्या है? How is जीवन related to स्नेहल? जीवन कौन होगा? उसका father. So जीवन is option D, father. Right? काफी आसान question था, right? Nothing complicated. That was question 12. Let us move on to question 13. So it is from coded relations, right? And by now you have understood the process of solving them. So I'm going to give you about 2.5 minutes. Please try to solve this one. Pause the video, try to solve this one and resume when you are done. Okay, so I hope by now you have solved this one. Let's look at what is given. A plus B means A is the mother, so female. Plus के पहले जो भी होगा वो female है. ठीक है? A plus B is A is the mother. We don't know the gender of B. A cross B means A is the husband of B. So A is male, husband, B is wife, female. Then which of the following shows P is the father of Q? Please understand. You have to make P the father of Q. So number 1, P should be male. And number 2, P and Q के बीच में generation gap होना चाहिए. एक generation gap. है ना? ओके, चलो P को पहले फादर बनाना है. सो P के बाद प्लस नहीं आ सकता ना, बिकॉज A प्लस B में A इज द मदर. सो P के बाद प्लस नहीं आना चाहिए. P के बाद प्लस नहीं आना चाहिए. B ऑप्शन गया, C ऑप्शन गया, बिकॉज P प्लस M, P प्लस Q यहाँ पर है. ठीक है, ये P क्रॉस M है. नाउ सी, A क्रॉस B में A इज द हस्बैंड ऑफ B. सो P क्रॉस M में P इज द हस्बैंड ऑफ M. दैट इज फाइन. ठीक है, यहाँ पर M क्रॉस P है. देखिए M क्रॉस P. A cross B में A is the husband, so B is wife. So that means M cross P में M is the husband, P is the wife. So option E भी चला गया. Please understand that solving such question पहले आप elimination पे focus कीजिए कि कितना आसानी से मैं किस option को eliminate कर सकता हूँ. That should be your focus in the beginning. So now I am left with 2 options. That is P cross M plus Q या फिर Q plus P cross M. ठीक है, चलिए पहले ये वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं. ऑप्शन ए, P क्रॉस M. इसका मतलब P इज द हस्बैंड, M इज द वाइफ. सो P स्मॉल, M वाइफ, एंड M प्लस Q. दैट मीन्स M इज द मदर ऑफ Q. दैट मीन्स Q इज देयर चाइल्ड. आई डोंट नो मेल फीमेल. क्या इसे समझ में, क्या इसे प्रूव होता है? P इज द फादर ऑफ Q. हाँ, यस, P इज द फादर. P M का हस्बैंड है और Q उनका चाइल्ड है. सो ऑप्शन ए गिव्स मी the required relationship that P is the father of Q.
ओके अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी में क्या खराबी है तो चेक कर लेते हैं। देखिए Q प्लस P, इसका मतलब Q इज द मदर ऑफ P, Q इज द मदर ऑफ P, बट हमें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। P फादर होना चाहिए, Q मदर नहीं होनी चाहिए, P उसका फादर होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड वंस अगेन दिस इज वेरी इजी, आप अब इसको लेस देन 2 मिनट्स में पक्का कर पाओगे। विथ मोर प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट अंडर 1 मिनट। दैट्स द गोल। दैट वाज क्वेश्चन 13 फॉर यू। क्वेश्चन 14 इज ऑन द स्क्रीन। If A at B means A is the son of B and A hash B stands for B is the sister of A, then which of the following represents A is the aunt of B? So once again coded relation का question है। दो ही टाइप के कोड्स हैं, राइट? सो आई थिंक आई शुड गिव यू 2 minutes for this one. Pause the video for 2 minutes, try to solve it and resume when you are done. Okay, so I hope you are done by now. Let us start solving this one. A at B means A is the son of B, मतलब A के बाद अगर at है तो A मेल है। Okay. A hash B means B is the sister of A. ध्यान से, A hash B means B is the sister. इसका मतलब अगर हैश आपके आगे है तो आप फीमेल हो। ओके, ठीक है। Now, which of the following represents A is the aunt of B? है ना, A is the aunt of B. Okay, so A is the aunt, मतलब A होनी चाहिए फीमेल, नंबर 1। एंड नंबर 2, जनरेशन गैप होना चाहिए। A एंड B के बीच में एक जनरेशन गैप होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले A फीमेल होनी चाहिए, राइट? सो A के बाद एट नहीं आना चाहिए। सो A के बाद एट नहीं आना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन गया। ओके, A के पहले हैश है तो A फीमेल है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, ठीक है। ओके, A एंड B के बीच में जनरेशन गैप होना चाहिए, मतलब A एंड B के बीच में हैश नहीं होना चाहिए। सो A और B के बीच में हैश नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। सो उससे हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो नाउ वी विल हैव टू गेट इनटू द ऑप्शंस। चलिए, B हैश C का क्या मतलब है? A हैश B में B इज द सिस्टर, सो B हैश C में C इज द सिस्टर। तो C सिस्टर किसकी? B की। B का जेंडर नहीं मालूम, ठीक है। C एट A, इसका मतलब C इज द सन ऑफ, जैसे A एट B में A इज द सन ऑफ B, C एट A में C इज द सन ऑफ A। सो C तो सन हो गया, इधर से फीमेल इधर से मेल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। सो वी डोंट हैव टू चेक इट। लेट्स लुक एट ऑप्शन बी। A हैश C, A हैश B में B इज द सिस्टर, A हैश C में C इज द सिस्टर, और फिर से C के बाद एट। तो यहां से आप C को फीमेल बना रहे हो, यहां से आप C को मेल बना रहे हो। सो बॉस ये भी गलत है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन सही है, डी। और फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वी विल चेक इट। B एट C, B एट C। सो B एट C का क्या मतलब है? A एट B में A इज द सन, B एट C में B इज द सन। सो स्मॉल b, किसका सन है? C का, और C हैश A। सो C का जेंडर नहीं मालूम। C हैश A का मतलब है A इज द सिस्टर, जैसे A हैश B में B इज द सिस्टर, C हैश A में A इज द सिस्टर ऑफ C। सो हाँ, A फीमेल है, A और B के बीच में एक जनरेशन गैप भी है, उसकी सिबलिंग का सन है। सो यस, A इज द आंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और 3 एलिमिनेट हो चुके हैं, विथ लॉजिक 4th को मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगर टाइम है तो ही उसको वेरीफाई करो, अदरवाइज मत वेरीफाई करो, है ना? बिकॉज आपने ऑब्वियसली लॉजिक के साथ 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, राइट? सो ट्रस्ट योरसेल्फ। एक ही ऑप्शन बचा है तो वही पॉसिबिलिटी है ना, करेक्ट? सो दैट वाज क्वेश्चन 14। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 15। इट्स अ चेन रिलेशन का क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, मधु सेड, she is the only daughter of my brother's wife's father. How is that lady related to Madhu? Everyone, please try. I'm going to give you again 2 minutes. So pause the video. It's an easy question. Pause the video for 2 minutes, solve it, and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done. Let us solve together. Pointing to a lady in the photograph, Madhu said. So Madhu है जो एक lady की तरफ point out कर रही है, ठीक है? She is the only daughter
of my brother's wife's father. Focus on this. ब्रदर की वाइफ के फादर. सो लेट्स से दिस इज मधु. ठीक है, ये मधु का ब्रदर, ये मधु की ब्रदर की वाइफ, और उस वाइफ के फादर. प्लीज अंडरस्टैंड, ये मधु है और इसके भाई का इन लॉज है. ये उसके भाई के इन लॉज है ना. ओके, नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस. ब्रदर्स वाइफ फादर हमने ये इंसान डिनोट कर दिया. नाउ शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर्स वाइफ फादर. इनकी इकलौती बेटी तो वही हुई ना, इनकी इकलौती बेटी. सो द ओनली डॉटर दिस पर्सन हैज इज दिस वाइफ ओनली, ब्रदर की वाइफ. इसका मतलब बेसिकली मधु अपने ब्रदर की वाइफ को पॉइंट आउट कर रही है. सो बेसिकली ये मधु की सिस्टर इन लॉ हुई. सो आंसर आ जाएगा सी. दूसरा तरीका, हमें मालूम है कि हम इन लॉज में बात कर रहे हैं. ये इन लॉज है. मधु के ब्रदर के इन लॉज है, तो ये ऑब्वियसली मधु के भी इन लॉज हुए, है ना. मतलब ये जैसे सिस्टर इन लॉ हुई, ऑब्वियसली ये फादर इन लॉ नहीं हुए मधु के, लेकिन ये तो सिस्टर इन लॉ हुई ना. सो जब आप इन लॉ में डील कर रहे हो तो आपका रिलेशन इन लॉ वाला ही होगा ना सिस्टर बन पाएगा, ना नीस बन पाएगा, ना मदर बन पाएगा, ना कजिन बन पाएगा. हाँ, नीस हो सकता था अगर इनके नीचे बात जाती तो, है ना. सो ये भी एक लॉजिक है जो आप यूज कर सकते हो. अगेन दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 15. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16. दैट्स फ्रॉम कोडेड रिलेशंस. सो a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a percentage b means a is the father of b, and a cross b means a is the sister of b. बहुत सारे रिलेशंस दिए हुए हैं. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? Very specific question. I'm going to give you 3 minutes for this one. Solve कीजिए, pause the video, solve it on your own and resume when you are done. Okay, so I hope by now you have done it, you have tried to solve it. Let's solve the question together. A plus b में a is the mother of b, ठीक है. So a female. A minus b में a is the brother of b, so a male. A percentage b में a is the father of b, so a male. A cross b में a is the sister of b, तो a female. Okay, so ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? So basically p जो है maternal uncle है, तो मतलब एक p हुआ male. सेकेंड, P एंड Q के बीच में जनरेशन गैप, एक जनरेशन का गैप. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके, चलिए पहले तो जहां जहां पर P को फीमेल दिखाया है ऐसा कुछ है तो चेक कर लेते हैं. फीमेल होने के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि अगर P के बाद प्लस है कहीं पे तो वो भी गया. P के बाद अगर क्रॉस है तो वो भी गया, बिकॉज एक में मदर है और एक में सिस्टर है. तो P प्लस P क्रॉस कहीं पे भी हो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए. इससे ऑप्शन बी गया, ठीक है. सो P प्लस ये गया, P माइनस M ये पॉसिबल है, Q माइनस M क्रॉस P ये अभी पॉसिबिलिटी अभी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर P का जेंडर नहीं बता पाएंगे ना, बिकॉज M क्रॉस P में हम इतना बोल पाएंगे कि M इज द सिस्टर ऑफ P, बट P का जेंडर नहीं पता चलेगा ना, एंड में है. जेंडर तभी पता चलता है जब उसके बाद कुछ हो, है ना. सो अगर M क्रॉस P है इसका मतलब M इज द सिस्टर ऑफ P. P का जेंडर नहीं मालूम, सो यहां से भी आंसर नहीं मिल पाएगा. C पे आते हैं, P माइनस M पॉसिबल. D पे आते हैं, Q माइनस S परसेंटेज P. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फादर. सो अगेन यहां से जेंडर नहीं मिल पाएगा. दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही C ऑप्शन मिल जाता है एज एन आंसर. बट यस, इन दिस केस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. तो चलिए लेट्स गो फॉर ऑप्शन सी, P माइनस M. A माइनस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B. P माइनस M मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ M. तो स्मॉल p, M का जेंडर क्या होने वाला है, M प्लस N. सो M इज द मदर, सो कैपिटल M. किसकी मदर, N की. N का जेंडर क्या होने वाला है, N का जो N क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस मतलब सिस्टर, सो N इज द सिस्टर. किसकी सिस्टर है वो, Q की. Q का जेंडर नहीं मालूम. तो आप देखिए फैमिली देखिए, P M का भाई है, M के दो चिल्ड्रन हैं. M इज अ लेडी, शी इज अ मदर,
एंड शी हैज 2 चिल्ड्रन, एक तो एन है जो लड़की है पता है, और एक क्यू है जिसका जेंडर नहीं मालूम है अभी। दैट मीन्स ये पी उसके मामा हुए, मामा, और मामा को ही हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। दैट मीन्स वी आर राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ब्यूटिफुली एलिमिनेशन से ही पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या किसी ऑप्शन को किसी एक गलती की वजह से एलिमिनेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, करेक्ट। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सेविंग सम टाइम। So that was question 16 for you. Let us move to question 17. Again from coded relations, right? Say, so take 2.5 minutes, solve it on your own and resume when you are done. Okay, so by now I hope you have solved it. चलिए साथ में करते हैं। A plus B means A is the brother of B, A minus B is the sister, A cross B is the father. Okay, which of the following means that C is the son of M? कंडीशंस क्या है, सी मेल होना चाहिए एंड जनरेशन गैप। सो एम ऊपर सी नीचे, जनरेशन गैप 1। चलिए सी मेल होना चाहिए, ये पकड़ के चलते हैं। इसका मतलब सी के बाद प्लस हो तो चलेगा, सी के बाद माइनस हो तो नहीं चलेगा, एंड सी के बाद क्रॉस हो तो चलेगा, सी के बाद माइनस नहीं चलेगा। सो सी माइनस समथिंग विल नॉट बी फाइन। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ठीक है, फाइन, ठीक है। सो अभी तक तो कुछ चेक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सी एंड एम के बीच में एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, मतलब सी एम के बीच में प्लस नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें ब्रदर सिबलिंग बन जाओगे आप। तो सी एंड एम इनके बीच में प्लस नहीं चलेगा, और क्या नहीं चलेगा, ए माइनस बी मतलब माइनस भी नहीं चलेगा, क्रॉस चलेगा। सो ये दोनों नहीं चलेंगे। सो देख लेते हैं कहीं पे अगर एम और सी एकदम साथ साथ में दिए हैं, सो यहां पर भी साथ साथ में नहीं, यहां पर भी साथ में नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो चाहता है कि हम लोग मेहनत करें, मेहनत मजदूरी करें। तो चलिए करते हैं, ऑप्शन ए को पकड़ते हैं पहले। लेट्स पिक अप ऑप्शन ए। m minus n means m is the sister of n, so capital M। n का जेंडर क्या है, n क्रॉस c। n क्रॉस c का मतलब a plus b means a cross b means a is the father, so n is the father, so small n किसका फादर, c का फादर, c का जेंडर c plus f, प्लस वाला मतलब क्या, ब्रदर, c is the brother, किसका ब्रदर, f का जेंडर नहीं मालूम। चलो हमें क्या रिलेशनशिप चाहिए था, c is the son of m, c is the son of m नहीं हुआ, m तो उसकी आंट हो गई, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पे चलते हैं, f माइनस सी, दैट मीन्स f इज द सिस्टर ऑफ c, कैपिटल F, सिस्टर c का जेंडर नहीं मालूम, c प्लस n, c इज द ब्रदर, ओके, तो स्मॉल c, और किसका ब्रदर है, n का ब्रदर है, n का जेंडर n क्रॉस n, n इज द फादर ऑफ n, m का जेंडर नहीं मालूम। सो वंस अगेन इस केस में भी c इज द सन ऑफ m नहीं आया, सो ऑप्शन बी भी गलत है। पकड़ते हैं ऑप्शन सी को, n प्लस m, n इज द ब्रदर ऑफ m, m का जेंडर m माइनस f, so m is a sister, so n is the sister of f, है ना, f, and f cross c, f is the father of c। तो यहां पर भी c का जेंडर नहीं मालूम, c लास्ट में है, so obviously वो ऑप्शन भी गलत है। So by elimination, now we have to say that D is the correct option, but again for just your verification, let's try to solve this. M cross n, m is the father of n, n का जेंडर n माइनस c, n माइनस c, n माइनस c माइनस a is a sister, so n is a sister, c का जेंडर c प्लस f, c is the brother, f का जेंडर नहीं मालूम। so look at this figure, m के सारे चिल्ड्रन है ये लोग, m के, n is the daughter of m, c is the son of m, so yes ये प्रूव हो जाता है that option D is the correct answer। वर्स्ट केस है ये जब कोडेड रिलेशन में लास्ट ऑप्शन सही आंसर हो, ये वर्स्ट केस होता है,
समझ लीजिए कि आपका नसीब खराब है, और कुछ नहीं कह सकते, राइट? दिस इज द क्रूएल्टी ऑफ द पेपर सेटर। वो बस आपको टॉन्ट कर रहा है, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना? दैट वाज क्वेश्चन 17 फॉर यू। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 18। A plus B means A is the brother, A cross B means A is the son of B, A percentage B means A is the daughter, then which of the following means M is the maternal uncle of N? Similar kind of question है, और एक none of this वाला ऑप्शन भी है, तो अच्छी बात ये है कि 3 ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। Okay, so I'm going to give you 2 minutes for this one. Pause the video, start solving and stop once you have the answer. Okay, so by now I hope you are done. Let's try to solve it together. Question क्या है? M is the maternal uncle of N. Constraints लिख दीजिए, M मेल होना चाहिए, एंड दूसरा M और N के बीच में एक जनरेशन का गैप। अंकल है ना वो, अंकल एक जनरेशन ऊपर होते हैं अपने। ओके, M मेल होना चाहिए। चलो, A plus B means A is the brother of B, A cross B means A is the son of B, A percentage B means A percentage B means B is the daughter of A। देखो ये समझो इसको, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर कहीं पे A percentage B दिया हुआ है, इसका मतलब B is the daughter of A, मतलब जिसके परसेंटेज के बाद जो आया वो फीमेल, सो परसेंटेज के बाद M नहीं आना चाहिए। कहीं पे है ऐसा? परसेंटेज के बाद M नहीं आना चाहिए, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, चलेगा, ठीक है। ओके, सो मेल हर जगह हम प्रूव कर पाएंगे शायद M है ना, बिकॉज उसके बाद प्लस है, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद प्लस है, यही तीनों केस है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 1, M plus O cross N। व्हाट इज M plus O? A plus B means A is the brother of B, so M is the brother। किसका ब्रदर? O का। O का जेंडर O cross N। A cross B means A is the son of B, so O cross N means O is the son of N, so O son, और यहाँ पर N का जेंडर नहीं मालूम। Now please look at the figure, N के ये दोनों चिल्ड्रन हो गए, सो मैटरनल अंकल नहीं बन पाएंगे, पहला ऑप्शन गलत, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन के पास जाते हैं। M percentage O, M percentage O, so A percentage B means B is the daughter of A, M percentage O means O is the daughter of M, so कैपिटल O किसकी डॉटर? M की डॉटर, M का जेंडर नहीं मालूम। ओके, O cross N, O cross N, A cross B means A is the son of B, O cross N means O is the son of N, बट यहां पर तो O फीमेल थी, तो ये ऑप्शन क्या है? बहुत बढ़िया। अगर किसी ऑप्शन में एक पर्सन के दो जेंडर दिखाई देते हैं तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेट्स पिक अप ऑप्शन सी, लास्ट ऑप्शन चेक करना है, अच्छी बात है। M plus O, M plus O means A plus B means A is the brother of B, so M is the brother of O। O का जेंडर क्या है? O percentage N, O percentage N का मतलब क्या है? N is the daughter of O, so O का जेंडर अभी भी नहीं मालूम है, और N डॉटर है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? M is the maternal uncle of N, M is the maternal uncle of N। मैटरनल तब कहलाएगा जब O फीमेल होगी, बट O का जेंडर नहीं मालूम है, एंड वी डोंट नो एनीथिंग दैट स्पेसिफाइज O's जेंडर, so that means हम इससे भी नहीं कह सकते हैं। आंसर आएगा अपना प्यारा सा none of this, है ना? None of this is the answer. That was question 18. Let us move on. Question 19. Deepak said to Nitin, that boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? अच्छा question है. Try to solve it under 2 minutes. Pause the video and resume when you are done. Alright, so I hope you are done with question 19. Let's try to solve it together. Deepak said to Nitin, देखो to Nitin है, मतलब वो नितिन को बोल रहा है, नितिन के बारे में नहीं। That boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. Last से start करो। My father's wife मतलब कौन? My father's wife मतलब my mother। Okay, daughter of my mother, daughter of my mother मतलब बेसिकली कौन? My sister। brothers of my sister मतलब कौन? brothers of my sister कौन? मतलब my brothers।
मेरी बहन के भाई, या तो मैं हूं या तो मेरे भाई है, राइट, बट वो दो लोगों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं माय ब्रदर. ओके, यंगर ऑफ द टू माय ब्रदर्स. इसका मतलब बेसिकली हाउ इज दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक. दीपक बेसिकली किसकी बात कर रहा है, वो अपने भाई की बात कर रहा है. सो दीपक्स ब्रदर, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी. देखो इन लॉ तो नहीं हो सकता बिकॉज इन लॉ में हम घुसे ही नहीं. सन भी नहीं हो सकता बिकॉज सेम जनरेशन में है. कजिन हो सकता था, सेम जनरेशन में. बट लुक एट द क्वेश्चन, टू ब्रदर्स ऑफ माय सिस्टर्स. मेरी सिस्टर के दो ब्रदर, उसमें से एक मैं हूं या फिर दोनों मेरे दूसरे भाई हो सकते हैं, है ना. अल्टीमेटली मैं अपने ब्रदर की बात कर रहा हूं, तो आंसर आएगा माय ब्रदर, राइट. आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव फाउंड दिस डिफिकल्ट. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 20. Veena, who is the sister-in-law of Ashok, is the daughter-in-law of Kalyani. Dheeraj is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. How is Kalyani related to Ashok? Very interesting question. थोड़े अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, राइट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 minutes. Try for 3 minutes. Pause the video. Solve the question and resume when you're done. Alright, so I hope by now you have tried to solve it. This is an interesting question. Veena, who is the sister-in-law of Ashok. Veena is the sister-in-law of Ashok. Okay, so there are two possibilities. एक कि let's say Ashok है, okay, and Ashok is male, so I'll write this way. So Ashok है, let's say Ashok का brother है, उसकी wife है Veena. Okay, this is possibility number 1. Possibility number 2. Let's say अशोक है, अशोक की सिस्टर है. अच्छा वैसे तो नहीं हो पाएगी. अशोक की वाइफ की सिस्टर, सॉरी. लेट्स से अशोक है, उसकी वाइफ है और उसकी सिस्टर वीना है ना. बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वीना अशोक की भाभी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, या साली हो सकती है, सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ के दो मतलब होते हैं, है ना. ठीक है, दो केसेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं. ठीक है, अब क्या बोला है उन लोगों ने. सो वीना, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी. वीना जो है ना वो कल्याणी की डॉटर इन लॉ है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रदर प्लस वीना, ये कपल जो है, ये इनकी मदर कौन होगी, कल्याणी, राइट. इनकी मदर होगी कल्याणी. और इस केस में अशोक वाइफ, वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी. सो वीना का भी कोई हस्बैंड होगा, जैसे मैं यहां पर हबी लिख देता हूं, और उसकी मदर कल्याणी. प्लीज अंडरस्टैंड बोथ द सिनारियोस. अंडरस्टैंड बोथ द सिनारियोस. ओके, अशोक का भाई, उसकी वाइफ वीना, वीना की सास, मदर इन लॉ इज कल्याणी. इस केस में तो समझ में आ गया. इस केस में आते हैं अशोक की वाइफ की सिस्टर वीना. ना वीना की मदर इन लॉ कोई और, so वीना की भी शादी हुई होगी. वीना इज मैरिड टू दिस हबी एंड उसकी मदर कल्याणी. दीज आर द टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस केस. ठीक है. Now, Dheeraj is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. Dheeraj is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. So, Ashok का only brother कौन है? Sudeep. Ashok का only brother is Sudeep. So, Sudeep has to be this person. And Dheeraj is the father of Sudeep. Dheeraj इसका father मतलब इसका husband हो गया. So, इसका husband मिल गया हमें Dheeraj. In this case, ये पूरा बैठ गया है. अब इधर आते हैं. धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक. अशोक का भाई, ओके, अशोक ब्रदर मैं यहां पर लिख रहा हूं, सुदीप. अशोक का भाई सुदीप एंड उनके फादर धीरज. ओके. How is Kalyani related to Ashok? How is Kalyani related to Ashok? So please understand, अब इनमें से कौन सा दो केस, इसमें से कौन से दो केस आप लोगे. अगर देखो ऑप्शन में none of this नहीं होता,
अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं होता तो आई वुड से चूज एनी केस विच फिट्स वन ऑफ द ऑप्शंस। बट अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों केस में आपको चेक करना पड़ेगा। चलो, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, इस फर्स्ट केस में कल्याणी तो सिंपली अशोक की मदर है, बट यहां पर मदर है ही नहीं ऑप्शन में। यहां पर देखिए कल्याणी अशोक की कौन होगी? अगेन मदर इन लॉ भी नहीं बोल सकते बिकॉज उस अशोक की साली की मदर इन लॉ है, सो वो वहां पर भी नहीं हो सकता। फिर आंसर क्या आएगा आपने? नन ऑफ दिस। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जनरली जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, ये ही प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट था बस। सिस्टर इन लॉ के दो मतलब हो सकते हैं, सो लेट मी जस्ट से, एक हो सकता है ब्रदर्स वाइफ, एक हो सकता है वाइफ्स सिस्टर। एंड एग्जाम में आपको इन दोनों को ही कंसिडर करना है। यू हैव टू कंसिडर द बोथ अनलेस गिवन अदरवाइज, है ना। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट अच्छी बात थी कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो कंफ्यूजन था ही नहीं, नन ऑफ दिस मार्क करके आगे बढ़ो। दैट वाज क्वेश्चन 20, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स गो टू क्वेश्चन 21। इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर सेज शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू of only brother of my mother. How is Sonia related to Amir? Simple question, try for 2 minutes, pause the video, solve it for yourself and resume when you are done. Chali, I hope by now you are done with this question. Introducing Sonia, Amir says she is the wife of only nephew of only brother of my mother. Okay, देखिए, only brother of my mother is my uncle. ओके, मेरे अंकल, और वो भी कौन? मम्मी के ब्रदर, सो माय मैटरनल अंकल। ओके, माय अंकल। ना ओनली नेफ्यू ऑफ माय अंकल। मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे एक अंकल है और उनका एक ही नेफ्यू है, तो वो मैं ही हुआ ना, क्योंकि मेरे तो अंकल हैं ऑलरेडी, वो दूसरा कोई पैदा नहीं होने वाला है। सो ओनली नेफ्यू इज बेसिकली मी, शी इज द वाइफ ऑफ मी। बेसिकली वो अपनी वाइफ की बात कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए, वाइफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कट करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, राइट। द की इज टू सिंप्लीफाई। द की इज टू सिंप्लीफाई। आप कैसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हो, बस वही मैटर करता है, दैट्स इट, है ना। सो दैट वाज क्वेश्चन 21 फॉर यू। लेट अस गो टू क्वेश्चन 22, which I also believe is the last question for this chapter. Now it's a coded relations. A plus B means B is the brother, A cross B means B is the husband, A minus B means A is the mother, A percentage B means A is the father. So थोड़ा सा tricky तरीके से relation दिए हैं, please ध्यान से पढ़ना। I'm going to give you about 3.5 minutes, आराम से कीजिए, pause the video, solve it for yourself and resume when you are done. Alright, so I hope by now you have tried to solve this one. चलो चेक करते हैं। So we've got few relationship, plus है, cross है, minus है, परसेंटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T? देखो बहुत ही स्पेसिफिक, ग्रैंड मदर ऑफ T। सो पहला नंबर 1, Q शुड बी फीमेल, एंड नंबर 2, Q एंड T के बीच में जनरेशन गैप 2 होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जनरेशन गैप लाने वाले ऑपरेटर्स कौन है? देखो, प्लस मतलब ब्रदर, मतलब सिबलिंग, सेम जनरेशन। क्रॉस मतलब हस्बैंड, कपल, सेम जनरेशन। A minus B means mother and A percentage B means A is the father. So that means Q और T के बीच में आपको चाहिए कम से कम एक, कहां गया, माइनस, एंड एक परसेंटेज। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। चलिए यहां आते हैं, माइनस भी है, परसेंटेज भी है, तो ऑप्शन हो सकता है Q फीमेल है, A माइनस B मीन्स A इज द मदर, Q इज द मदर, हो सकता है। P क्रॉस Q, परसेंटेज और माइनस, यहां पर भी दो चीजें हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? A इज द फादर ऑफ B, सो Q इज द फादर, सो B ऑप्शन गया। चलो बहुत बढ़िया। P क्रॉस Q प्लस परसेंटेज R प्लस T, जनरेशन गैप इनफ नहीं है, C ऑप्शन गया। देखिए जनरेशन गैप 2 होने के लिए माइनस परसेंटेज, या तो ये दोनों होने चाहिए, या तो -2 बार हो या परसेंटेज 2 बार हो, कुछ ना कुछ।
जनरेशन गैप 2 है तो जनरेशन गैप लाने वाले ऑपरेटर्स 2 बार होने चाहिए ना, तो सी में नहीं है। इसमें देखिए P प्लस क्यू, क्यू परसेंटेज आर, परसेंटेज आर का मतलब क्या होता है, ए परसेंटेज मींस ए इज द फादर ऑफ बी, क्यू परसेंटेज आर मतलब क्यू फादर हो जाएगा, तो ये भी गया, ए के ऑप्शन सही है, ए इज द आंसर, फैंटास्टिक। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज द की, दैट्स इट। बट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। चलिए Q माइनस P, A minus B means A is the mother of B, Q minus P means Q is the mother of P, so Q capital, P का जेंडर अभी नहीं मालूम है, P plus R, that means P, A plus B means B is the brother of A, so P plus R मतलब R is the brother of P, that means P का जेंडर अभी भी नहीं मालूम है, but R उसका ब्रदर है, ये पता चल गया। R परसेंटेज T मतलब R परसेंटेज T मतलब R is the father of B, sorry T का जेंडर नहीं मालूम है। नाउ सी प्लीज अंडरस्टैंड, टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसके फादर की मदर हो गए ना ग्रैंड मदर, फादर की मदर इज ग्रैंड मदर, सो यस क्यू इज द ग्रैंड मदर एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, राइट। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन ऑफ डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशंस। आई होप वॉचिंग दिस सेशन हैज बीन फ्रूटफुल एंड आपको ये 2 चैप्टर्स में अब काफी हद तक एक्सपर्टीज आ चुकी होगी, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट सेशंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो हम लोग कैट में देखने वाले हैं, राइट। सो कीप वॉचिंग ई कोचिंग वीडियोस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।